Good evening, students. Good evening, sir. Okay. So today we're going to start common ammeter configuration. Okay. So yesterday we have seen common base configuration. Today we'll see common ammeter configuration. Board visible है ना? Configuration. Okay. So what is common ammeter configuration? You have a transistor. Okay. So you have base. Okay. You have collector and you have ammeter. Okay. So in common ammeter configuration, what you do, you make ammeter as a common. Okay, this will become your common. Now this is your ammeter base junction. Okay, and this is your common, this is your collector base junction. So what I'll do, this is NPN transistor and PN. Okay, so in order to make to work transistor in active region, we have to make this this junction positive. Okay, so this will be VB. So say I'm applying a battery, a variable battery VBV, and this is my ground. Okay, similarly here I'm applying say a VCC. Okay, this should be reverse bias, that means N should be connected to plus. This is the VCC, is also variable. Okay, so this is a variable battery. This is my VCC. Okay, so when I apply VBB, okay, so this is my base emitter junction. There are two junctions. Huh? Input junction means base emitter junction. Output junction means what? Collector emitter junction. Now, okay. So now my input, this one, sorry, this input base, and this is my emitter. Okay. So this should be what? Forward bias. So here voltage drop will be VBE. Okay, from base to emitter, the voltage drop will be VBE. Okay, similarly from collector to emitter voltage drop, that will be VCE. Okay, and if I calculate the voltage drop from collector to base, say this is my VCB. That means from collector to emitter, the voltage drop is VCE. Okay, so now this VCE is equal to what? VCB plus VBE. Clear? So VCE, this VCE from collector to emitter. Okay, emitter is ground. This voltage is VCE. Okay, voltage drop. So this will be equal to VCB and VBE. So if I want to write VCB, so my VCB will be now VCE minus VBE. Okay. Now in order to work in active region, my this junction, okay, VCB should be positive. VCB should be positive means my collector should be positive with respect to base. ये तो होता है ना पी रेगुलर रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है? ये तो आपका पॉजिटिव है, विद पॉजिटिव है ऑलरेडी लगा दिया मैंने ग्राउंड के उससे पॉजिटिव है ये वाला जंक्शन, तो ठीक है. अब कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस होना चाहिए. तो कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होने के लिए क्या होना चाहिए? जहां ये पॉजिटिव होना चाहिए, किसके विद रिस्पेक्ट टू में? बेस के. ओके, that means now my VCB should be positive. So VCB should be positive. That means my VCE should be greater than VBE. Okay, greater than or equal to VBE. तो आपका जो VCE है वो हमेशा VBE से ज्यादा होना चाहिए इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में काम करने के लिए. जैसे ही आपका VCE क्या वोल्टेज ड्रॉप हियर कलेक्टर टू एमिटर, जैसे ही ये VCE आपका VBE से कम हुआ, ओके, जैसे ये VB होता है 0.7 पर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर. ओके, जैसे ही आपका VCE 0.7 से कम हुआ, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपका जो है वो जंक्शन जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा. दैट मींस वो सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा. ये ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस सैचुरेशन में आ जाना चाहिए. इसलिए आपका VCE
हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू VB होना चाहिए. ओके, सो नाउ दिस इज कंडीशन टू मेक दिस जंक्शन as in reverse bias. Now what is the input quantities in this configuration? Input quantities क्या है यहाँ पर? VBB and VCC. Okay, so current आ रहा है VBB. Okay, this is NPN transistor. So current will go always from P to N. So this will current. So IC will come here. Okay, I will go here, and similarly IB will go inside. Okay, so this plus going inside, electron flowing opposites. Okay, so this is input quantity is base current. आपकी base current है एक तो input quantity IB और इनपुट वोल्टेज बेस टू अमीटर वोल्टेज, बेस टू अमीटर voltage. Okay, this VB is your input quantities. Okay, similarly if I write output quantities, okay, so output quantities are IC. Okay, collector current IC, and then we have collector to ammeter voltage, collector to ammeter voltage. Okay, VCE is my, ये लेफ्ट हैंड साइड में VBE है ना सर, ये वेरिएबल VBE. ये VBE है. ओके, बेस टू नो अमीटर. सर ये वेरिएबल वाला VB ये ऊपर VB है. ऊपर ये VBB बैटरी लगा रहे हैं VBB. ओके, बैटरी लगा रहे हैं और यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है वो VB है, यहाँ पे लगा रहे हैं BCC और ड्रॉप हो रहा है VCE है. आप चलो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, वो दिखाने के लिए, समझने के लिए है. ठीक है, कि ये हमारा जो इतना आ रहा है वो लगा रहे हैं जहाँ पे इतना VB आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज BCB. नाउ आई वांट टू ड्रॉ दिस. सर VCC भी बैटरी है. बेसिस बैटरी है. ओके, अच्छा मतलब दोनों बैटरी है. हाँ, वेरिएबल बैटरी से इसको. एक मिनट. हाँ जी, अच्छा लिख रहे हैं. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना, क्योंकि इसी से प्लॉट समझ में आएगा. कल के फॉरवर्ड बायस होने के लिए ग्रेटर हो. हाँ, VCB ग्रेटर देन शुड बी VB. ओके, नाउ दिस इज, इसको मिटा देता हूँ. सर हाँ. मेरा कंफ्यूजन है. हाँ. वो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम करते हैं, हाँ. वो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के आउटपुट. हाँ, कांस्टेंट रख के हम इनपुट को वेरी कराते हैं. हाँ. सर वो आउटपुट वोल्टेज जब बढ़ता है, हाँ. तो इनपुट करंट क्यों बढ़ता है? मतलब इनपुट करंट से सपोज IE के साथ हम VCE प्लॉट कर रहे हैं. ये आप क्या कर रहे हैं? VB के साथ में IB कर रहे हैं. ठीक है ना? हाँ सर. हाँ. VB के साथ IB प्लॉट कर. हाँ, तो इसलिए हम जब VCC बढ़ा रहे, तो IB क्यों इंक्रीज करेगा? भी जैसे कल हमने किया था, कल हमारा इनपुट करंट क्या था? IE था. ठीक है ना? हमने I किया था, और क्या था हमारा दूसरा इनपुट वोल्टेज क्या था? VBE था. ठीक है, इनको करने के लिए हमने VCC हमने VCC हमने किया था. ठीक है ना? तो जैसे कल हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था, दिखा नहीं गया? VCC बढ़ाने के बाद एक लेवल पे जाके वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, जो कल हम आउटपुट अभी प्लॉट करते हैं, देखते हैं अभी. ठीक है, सो अभी क्लियर हो जाएगा. और क्वेश्चन देखते हैं क्या है. अच्छा क्वेश्चन है. सो अभी जैसे फॉरवर्ड बायस सर इसमें एक मुझे सर VB इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब हुआ सर? VCB ग्रेटर देन 0 मतलब ये जो B और हाँ सर पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव होना चाहिए ना? तो सर ये क्या रिवर्स बायस में है? मतलब व्हाट आपका जो कलेक्टर है, कलेक्टर शुड बी पॉजिटिव. ओके, कलेक्टर शुड बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस. बेस का मतलब अब बेस हमने ऑलरेडी पॉजिटिव करके रखा ही है. ठीक है, तो कलेक्टर बेस से पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि उसका वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए. पॉजिटिव बैटरी से जुड़ा है. हाँ, वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज लगा ही रहे हैं,
तो अब जैसे यहाँ पे लगा हुआ 0.7, तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए वोल्टेज उसका, तभी तभी वो इसके विद रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, तभी वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यस। ओके, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हम पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यस सो सर। सो नाउ अभी देखते हैं हम इसको। अब नाउ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना है हमको। इनपुट कैरेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वीसी और इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वीसी को, और हम भी प्लॉट आईबी वर्सेस वीबी। ओके, सो वीसी तो आईबी, तो वीबी का मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है वीबी का, मिनिमम वैल्यू तो 0.7 है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होगा और फिर सडनली ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, बीबी से, एंड दिस इज, so this is VCC is constant. Okay, so say VCE, so VC suppose 0 volt hai. Okay, and this is my IB, this is my VB. Now suppose what I do, okay, now I'm increasing my VCE. Okay, so I'm increasing my VCE now. Okay, 2 volts. तो अब क्या हुआ कि हमको सेम करंट मिल रहा है IB, सेम करंट मिल रहा है IB, पर हमको सेम करंट लाने के लिए VCE को बढ़ाना पड़ा। सेकंड केस में हमको जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, कल के केस में तुम देख लेंगे। इस केस में ऐसा क्यों हुआ, अब जैसे ही हम VCE बढ़ाएंगे, ओके, हमारे पास 2 जंक्शन है। ओके, दिस इज माय P, दिस इज NPN और PNP ट्रांजिस्टर। ओके, so I have one junction here, one junction here. Okay, so now I am making it reverse bias. Suppose I am making it reverse bias. Okay, so when I am making reverse bias, I am increasing reverse voltage. Okay, so when I am increasing reverse voltage, okay, suppose मैंने पहले 0 लगाया, okay, then I have some width here, कुछ width है यहाँ पर। Okay, second time what I can do, I increase from 0 to 2 volts. जैसे मैंने को 0 से 2 बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, मेरा ये डिप्लेशन विड्थ बढ़ेगा। ओके, सो डिप्लेक्शन विथ बढ़ने से क्या हो रहा है, एज आई एम इंक्रीजिंग माय VCE, माय कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो डिप्लेक्शन विड्थ है पिन जंक्शन का, दैट विल इंक्रीज। और जैसे ये जंक्शन का विड्थ इंक्रीज होगा, मेरा बेस का विड्थ कम हो जाएगा। ओके, सो बेस का विड्थ कम हो जाने से क्या होगा, बेस का विड्थ कम हो जाने से बेस क्या, बेस में रिकॉम्बिनेशन IB कम होता है, बेस में रिकॉम्बिनेशन कम होता है, IB कम हो जाएगा। IB कम हो जाएगा तो क्या मतलब हो जाएगा, अब वो जितना भी IC आ रहा है वो यहाँ पहुंचेगा, दैट मींस IC बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वो IC बढ़ जाएगा, IB रिकॉम्बिनेशन जो IE यहाँ से आ रहा था पहले एमीटर करंट, ओके, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, अभी रिकॉम्बिनेशन कम हो गया, रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो यहाँ पे ज्यादा IC पहुंचेगा। ठीक है, तो वो चीज IB कम हो जाएगा, IC बढ़ जाएगा, तो IB यहाँ इनपुट में हम देख रहे हैं IB कम हो रहा है, और सेम IB रहने के लिए हमको वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है, सिमिलरली सर ये पॉइंट मैं नहीं समझ पाया सर। ये मतलब आपने कहा कि VCE अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं मतलब कॉमन एमीटर, हाँ, तो सर कॉमन तो N पे है। VCE बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब VCB बढ़ेगा। अभी बताया था ना मैंने, VCB क्या होता है, भी आपका क्या होता है, VCB क्या होता है, VCE माइनस VB। ओके, अब आपने, ठीक है, अब फिक्स VB के लिए कोई वैल्यू फिक्स, जैसे कोई ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया, आपको ये मिल गया। ठीक है, अब अगर आप बढ़ा रहे हैं इसको, VCE को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, VCE बढ़ा रहे हैं, तो VCB भी बढ़ रहा है, VCB बढ़ रहा है मतलब रिवर्स बायस बढ़ रहा है और रिवर्स बायस बढ़ रहा है तो जो डिप्लेशन विड्थ बढ़ रहा है, डिप्लेशन बढ़ने से बेस का विड्थ मॉड्यूलेट हो रहा है। ओके, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, और इसको अर्ली इफेक्ट भी बोलते हैं। सर डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है तो बेस मॉड्यूलेट हो रहा है, इसका सेंस क्या हुआ? भी आपका जो विड्थ बढ़ेगा, बीच में बेस है, अगर आपका विड्थ बढ़ रहा है तो आपका बीच का बेस कम नहीं होगा। अच्छा हाँ, बेस कम हो रहा है क्योंकि बेस की विड्थ कम हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं आउटपुट में बताने वाला था, यही बता दिया, इसको बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट। ओके, तो अभी अच्छा सर ये सी और अभी बता रहे हैं,
सी और बी रिवर्स में है, ये कैसे पता चल रहा है सर? हम्म सी और बी रिवर्स में कहाँ दिख रहा है सर? एन को पॉजिटिव से ये, भी पर ये पी वाला तो नेगेटिव से होना चाहिए। भी ये तो फॉरवर्ड बायस है ना, हाँ, ठीक है, और ये एन से जुड़ा हुआ है तो ये रिवर्स बायस है। एन से। एन से जुड़ा हुआ है ना, ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है तो रिवर्स बायस है, अच्छा अच्छा। ऑलरेडी ऑल रिवर्स बायस है। बट हमको क्या चाहिए, हमको रिवर्स बायस था, लेकिन ये जो पॉजिटिव टर्मिनल सी है ये बी के विथ हम्म रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यस यहाँ पर सर। जो वोल्टेज लग रहा है वीबी वीसी वो बीबी से बड़ा होना चाहिए, वीसीबी, ठीक है, वीसीबी हमारा बीबी से बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो इसके कंपेरिजन पॉजिटिव आएगा। ये 5 है, ये 2 है, ये 5 होना चाहिए, ऐसा नहीं ये 2 है तो ये 2 तो 0 हो गया, तो ये रिवर्स बायस कहाँ हुआ। तो अच्छा अच्छा। कंपेरेटिवली इसके इसका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, अच्छा, इसके कंपैरेटिबल ये पॉजिटिव है तो मतलब रिवर्स में ये है। रिवर्स है, ठीक है। ओके सर। So this is my VB. Okay. So yeah, IB is decreasing. Okay. Because of base width modulation. Because of decreasing, IB is decreasing. IB decreasing. Okay. Because okay, increase of VCE. Increase of VCE. Okay, लिखो IB decreases because increase of VCE increases depletion width. Increases depletion width, okay, at CB junction, which in turn reduces the base width, okay, which in turn reduces the base width, okay, and reduction in base width, okay, decreases the recombination rate, okay, so IB decreases, okay, तो ये पॉइंट क्लियर है ना। सर हाँ ये जो ग्राफ है हाँ पिछले दिन उसमें तो उल्टा था, मतलब हाँ हाँ ये जो 0 हाँ हाँ 2 पीछे 4 है। पीछे उल्टा था ना, पीछे उल्टा था, और उसको देखना पड़ेगा उसमें क्या था, ठीक है। इसमें तो समझ में आ गया ना इफेक्ट, हाँ सर। उसमें कुछ और इफेक्ट होगा, ठीक है, वो भी देखते हैं थोड़ा, ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं। तो ये देख लिया हमने, ये क्लियर है। ठीक है कल का भी उसमें बताया था मैंने, फिर देखते हैं, चलो ये तो क्लियर हो गया है ना, अब आगे देखते हैं। सर विच इन टर्न रिड्यूसेस बेस विड्थ के बाद क्या बोला सर आपने? ओके, एंड डिक्रीज इन बेस विड्थ रिजल्ट इन लेस रिकॉम्बिनेशन, ओके सर। ठीक है। नाउ अभी देख लेते हैं हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ओके, सो नाउ अगर ये IB 0 है, IB 0 है मतलब ये सर्किट ओपन है, तो यहाँ पे IC जो फ्लो होगा वो क्या होगा, ICO, ओके। तो पहला तो वही कर लेते हैं हम लोग, मेरा IB 0 है, तो IC, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट करंट को कांस्टेंट रख के, ओके, VC बढ़ाते हैं और IC मेजर करते हैं, VC वर्सेस IC, ओके। सो नाउ क्या करेंगे इसको, नाउ सेकंड केस क्या हो जाएगा, फिर बढ़ा रहे हैं हम लोग IB को, तो ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ेगा, ओके, ये बढ़ेगा इसमें, दिस इज माय IB से दिस इज IB 10 माइक्रो एम्पियर, ओके, दिस IB, इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स राइट? यस, ओके, IB 30 माइक्रो एम्पियर, ओके, से IB 50 माइक्रो एम्पियर। नाउ ये रीजन जहां पर करंट जो कलेक्टर करंट है दैट इज ओनली ICEO, ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, स्टडी वी डिस्कस, ओके, दिस इज योर कट ऑफ रीजन। नाउ ये वाला रीजन है, ओके, यहां से देखो ये वाला रीजन है, इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे कर प्लॉट करना पड़ेगा, थोड़ा 0 से पहले ही, ठीक है, थोड़ा 0 से पहले ही, क्योंकि हमारा VC हमारा 0 नहीं हो सकता है, दिस इज VC कैन नॉट बी 0, ओके, VC 0 हो जाएगा तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो एक VC की पर्टिकुलर वैल्यू नीचे 0.7, ओके, 0.7 वैल्यू होगा, तभी उसके बाद ही उसके पहले का रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे ये ग्राफ है मेरा, ओके, तो ये मेरा ग्राफ है,
तो ये जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। कल पूछ रहे थे ना क्या होता है नी वोल्टेज, इसको नी वोल्टेज। दैट मींस वीसी का ये वो वैल्यू है जहां से एक्टिव रीजन शुरू होता है। ठीक है, एक्टिव रीजन में क्या होता है कि जो करंट होती है, जो आउटपुट करंट होती है, वो खाली इनपुट पे, कलर किसमें, इनपुट करंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे ये आईसी है, आईसी ओनली डिपेंड्स ऑन आईबी इस रीजन में, जिसको एक्टिव रीजन। ओके, क्या होता है आईसी, आईसी आईबी बीटा इक्वल टू आईसी इंटू आईबी। तो आपका जो आईसी है वो स्लोली बीटा इस पे डिपेंड कर रहा है, जबकि इस एरिया में एक्टिव रीजन में क्या हो रहा है, जैसे आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो आपका करंट भी चेंज हो रहा है। तो वो खाली वोल्टेज पे इनपुट करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आउटपुट के वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। वो जो है, आप आउटपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हो, आपका आउटपुट करंट बढ़ रहा है। वो तो क्या है, स्विच ऑन है, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। तो ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। सर आप एक नी वोल्टेज वाला बता दो। किसका? नी वोल्टेज। बी नी वोल्टेज, हाँ, नी वोल्टेज वही वोल्टेज है, ओके, जहां से ये वाला, सॉरी ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, गलत ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो वोल्टेज है, दिस इज कॉल्ड योर नी वोल्टेज। नी वोल्टेज वो वोल्टेज है, ओके, जहां से आपका एक्टिव रीजन शुरू होता है। मतलब मिनिमम वीसी को कलेक्टर वॉइस जंक्शन को करने के लिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को पॉजिटिव करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू बेस, यानी कि कलेक्टर को रिवर्स, इस जंक्शन को रिवर्स पास करने के लिए एक मिनिमम वीसी रिक्वायर होता है। दैट मिनिमम वीसी इज कॉल्ड योर नी वोल्टेज। ओके, और नी वोल्टेज के बाद में आपका एक्टिव रीजन शुरू होता है। उसके पहले जो भी वोल्टेज है उसमें करंट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। आपकी फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली जहां पर आ रहा है, जो आपका आउटपुट करंट आ रहा है आईसी, वो खाली आपकी इनपुट करंट पर डिपेंड कर रहा है। दिस इज एक एक्टिव रीजन। और जैसे आपके प्रोफेसर पूछ रहे थे इसको एक्टिव रीजन क्यों बोलते हैं, तो एक्टिव रीजन इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम कलेक्शन हो रहा है। एक तो एम्पलीफायर के लिए सुटेबल है, एक्टिव है, दूसरा मैक्सिमम कलेक्शन हो रहा है। जैसे कल हमने देखा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आई इक्वल टू आईसी था। ओके, तो इस रीजन में आई इक्वल टू ऑलमोस्ट आईसी है। तो इतना वोल्टेज हमने लगा दिया कि जितना हमने आई भेज रहा है उतना आईसी कलेक्ट कर रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ गई ना, एक्टिव है। ओके, this is called active region. Okay, so this is your saturation region, this is your cutoff region, and this is your active region. Okay, clear है ये? सैचुरेशन रीजन मतलब VC is proportional to IC हो जाए तो उसको सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ स्विच। यहाँ पे तो क्या करंट, ये दिस कट ऑफ रीजन, यहाँ पे आपको करंट जीरो कलेक्टर करंट जीरो मिल रहा है। यहाँ पे करंट कलेक्टर क्या है इस रीजन में, आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, ओके, इस रीजन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो आपका करंट भी बढ़ रहा है, आईसी बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज लाइक ओपन स्विच ऑन। ओके, स्विच ऑन मतलब वोल्टेज बढ़ाते जाओ, आपका करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे आगे करंट सैचुरेट हो गया, सैचुरेट मतलब लिमिट हो गया, डिपेंड्स ओनली ऑन इनपुट करंट आईबी। सो ये इनपुट करंट इज आईबी। ओके, दिस इज एक्टिव रीजन। अच्छा, तो मतलब एक्टिव में IC इज प्रोपोर्शनल टू IB हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, उसी पे डिपेंड करेगा। बीटा कांस्टेंट है इसके लिए, इस ट्रांजिस्टर के लिए गेन फैक्टर, तो जो आईसी है वो बीटा आईबी हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये? और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम डिफाइन करेंगे इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस। ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो अब इसको थोड़ा नेगेटिव में प्लॉट कर लेते हैं। अब ये जितने भी वोल्टेजेस हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। आपका जो पहले मैंने जो बताया था, ग्राफ प्लॉट किया था, वो एकदम स्ट्रेट लाइन था। इसमें थोड़ा सा हल्का सा स्लोप होता है, इस जो अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हल्का सा स्लोप होता है। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेना, हल्का सा स्लोप क्यों होता है बताओ, स्लोप क्यों होता है? अभी बताया था मैंने, स्लोप क्यों होता है, क्योंकि आईसी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, आईसी भी बढ़ रहा है, आईसी भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है आईसी? क्योंकि आईबी कम हो रहा है। जैसे जैसे वीसी बढ़ता जाएगा आपका वीसी भी बढ़ता जाएगा। ओके, वीसी भी बढ़ने से क्या हो रहा है, आपका बेस का विड्थ कम हो रहा है, बेस का विड्थ कम हो रहा है, मतलब आईबी कम हो रहा है, आईबी कम हो रहा है। वहां पे तो आई ही था, वहां पे भी हो रहा था ये बेस विथ मॉड्यूलेशन, तो उस केस में भी हो रहा था। पर उस केस में हमारा जो फर्स्ट में था, हमारा जो आउटपुट करंट था वो आई था। ओके, तो हियर आउटपुट करंट इज आईसी, तो वहां तो आई कांस्टेंट है क्योंकि आई भी आईसी चेंज हो रहा है।
IB कम हो रहा है, IC बढ़ रहा है, IE कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, हम प्लॉट कर रहे हैं IC, ओके। तो IC IB कम हो रहा है, तो आपका IC स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, okay, and this effect is called your base width modulation. This increase is called base width modulation or early effect, okay। और इसी वोल्टेज को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें, इस ग्राफ को हम अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करें, पीछे की तरफ ले जाएं, तो ये सारे ग्राफ, जितने भी ग्राफ है, सारे ग्राफ, ओके, इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें पीछे की तरफ, तो ये सारे ग्राफ जाके एक पॉइंट पर मर्ज होते हैं, जिसका जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू VA, okay, early voltage. VA is your early voltage, okay, माइनस होगा early voltage। और इस ग्राफ में अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए RO, okay, आउटपुट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC, कीपिंग IB constant, IB equal to constant, ओके। सिमिलरली हमने इनपुट में जो किया था, इनपुट में क्या आएगा, R इनपुट कॉमन क्या था हमारा, डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, ओके, कीपिंग VCE कांस्टेंट, ओके। सो दिस इज, सो अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है, अब देखो यहाँ पर करंट तो है IC है, ठीक है ना, तो इसका जो रफली वैल्यू होता है, ओके, दिस RO we can prove also mathematically, RO that is mathematically equivalent to VA almost, okay, upon IC, okay। तो रफली इसका जो होता है वो VA अपॉन IC होता है, ठीक है, इस ग्राफ के लिए। that we mathematically we can derive, okay। सर हाँ सर VA क्या वेरी करेगा सर? नहीं, VA तो सबके लिए, सारे ग्राफ के लिए एक ही रहेगा। और सर IC तो पर वेरी करेगा ना सर? हाँ, तो वो मिनिमम कुछ एवरेज लेना पड़ेगा इसका, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं कहीं पे जहाँ पे ये मैं जहाँ से ये मैच कर रहा है, इसी को लेगा IC से, ठीक है, देखना पड़ेगा। सर बट सर हर एक लाइन, हर एक IB के लिए तो अलग अलग IC है ना सर, तो हर एक उसके लिए R0 भी अलग अलग हो जाएगा। दैट इज करेक्ट, ओके, उसको देखना पड़ेगा कैसा आएगा। तो जो हम जो ग्राफ निकालते हैं वो सभी के लिए सेम आता है क्या, जो हम आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं दैट इज सेम फॉर ऑल द ग्राफिक्स, और हम एक ही ग्राफ के लिए निकालते हैं? सर मतलब कि एक ग्राफ के लिए निकालते हैं ना सर, यहाँ तो एक ही ग्राफ के लिए होगा, एक ही पॉइंट उसके लिए होगा ना सर, लाइन के लिए। ओके, लेट मी चेक दिस पॉइंट, ओके, इज गुड पॉइंट, ओके। अभी मैं भी, मुझे भी तो, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेशन देखा नहीं अभी तक, बुक में है, पर मैं इसको थ्रू देखा नहीं हूं। ROE क्या है सर? आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस इम्पीडेंस इन कॉमन एमीटर, ई मतलब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और RIE इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ओके, तो ये मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन एक दो तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं संडे को उसको मैं देखूंगा, ठीक है, संडे को हमारी क्लास है उसमें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। सो नाउ okay, now we have some problems, we'll do some problems, okay। अच्छा, अभी हमने कलेक्टर करंट का फॉर्मूला निकाला, कलेक्टर करंट का फॉर्मूला, collector current in common ammeter configuration। So common ammeter configuration में जो आपका current gain factor है that is beta, that is equal to IC minus ICEO, okay, upon IB। Since reverse saturation current that is negligible, so we can write beta equal to IC upon IB, okay। generally हम ये लेते हैं, actual definition ये है इसकी। So here from here I can calculate my IC, my IC will be beta IB plus ICEO, okay। और कल हमने IC निकाला था, वो क्या आया था मेरा, IC beta IB plus ICBO upon 1 minus alpha, okay। So if I compare these two equation, okay, my ICEO will come as ICBO 1 minus alpha, that is 1 minus alpha is beta plus 1, beta 1 plus ICBO, okay।
Now beta is okay. Yesterday I told you is maybe 50, 60, 100 to 500. Okay, that means my ICEO is greater than ICBO. Okay, that means आपका जो कॉमन अमीटर है उसके अंदर जो सैचुरेशन करंट है वो आपके कॉमन बेस अमीटर के कंपैरिजन में सैचुरेशन ज्यादा है. ओके ना, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है जो मेन मैं बताना भूल गया. कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आपका जो इनपुट करंट है दैट इज IB एंड आउटपुट करंट इज IC. ओके, सो इनका जो रेशियो होता है बीटा. ओके, दैट मीन्स जो गेन है, गेन फैक्टर है कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वो 1 से ज्यादा है. While yesterday we have seen in common base configuration, my gain was IC upon IE. Okay, alpha. Okay, which was less than 1. 0.9, 0.98, 0.99999. It was less than 1. Here my gain is more in the case of common amitter configuration. Okay, while yesterday we have seen the output resistance in it was more in the case of common base configuration. Okay, here while here today I seen my resistance is slight slope है, मतलब वो रेजिस्टेंस कम है पैरेलल कंपेयर में. तो कल जो मेरा जो रेजिस्टेंस था वो ज्यादा था, आउटपुट ज्यादा था. तो आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होता है, आपका वोल्टेज गेन ज्यादा होता है. ओके, सी द डिफरेंस. If you have a more resistance, then you have more voltage gain. Okay, if you have more current, then you have more current gain. And when you want to calculate power gain, then you need both voltage gain and current gain. Okay, so कल वाले केस में क्या था कि आपका वोल्टेज गेन ज्यादा था, करंट गेन क्योंकि IC लेस देन IE तो थोड़ा कम था. अब यहाँ पर क्या है, आपका करंट गेन बहुत ज्यादा बढ़ गया. This is because this is less than 1, this is 50, around minimum 50, 60. Okay, at least 10 times more than this. Okay, तो करंट और जो वोल्टेज गेन है वो स्लाइटली कम हुआ क्योंकि अभी जो रेजिस्टेंस है कॉमन अमीटर, इसका आउटपुट का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है. इसका ये दे हैव वेरी स्लाइट स्लोप. ओके, तो इसका भी आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है, पर कल वाले केस से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से कम है. ठीक है, पर है तो ज्यादा ही. So power gain is more in the case of common emitter configuration क्योंकि करंट गेन बहुत ज्यादा है. ओके, सो ये डिफरेंस है. इसीलिए जो कॉमन emitter configuration है दैट इज यूज्ड फॉर एम्पलीफायर. ओके, वी यूज इट फॉर मेल. ओके, वी यूज इन फॉर common emitter configuration is preferred in the case in for amplifier, especially when we want power gains. Okay, clear है सर मतलब कॉमन एमीटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका जो अल्फा होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है. वो भी कोई भी एम्पलीफायर है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आप एम्पलीफाई कर सकते हो. ठीक है, पर जो कॉमन एमीटर है वो मोस्ट सुटेबल है. क्योंकि उसके अंदर गेन ज्यादा है. गेन ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें करंट गेन ज्यादा है. वो तो आपकी बायसिंग पर डिपेंड करता है. अगर एक्टिव रीजन में कोई भी ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफाई करेगा. ठीक है, बट किसका आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसमें करंट गेन ज्यादा है वो देखना पड़ेगा. आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस में ज्यादा है. ठीक है, स्लाइटली ज्यादा है कॉमन अमीटर से, तो कॉमन अमीटर के अंदर करंट गेन बहुत ज्यादा है. ओके, सो दैट मींस ये आपको जो एम्पलीफिकेशन है ज्यादा देगा कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो सारे पे जितने एम्पलीफायर बनाए जाते हैं जनरली कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बताए जाते हैं. ओके, okay, so we have seen some formulas. Okay, now you calculate. Okay, the reverse leakage current of a transistor when connected in CB configuration is common base configuration में आपको रिवर्स करंट को बोलते हैं ICBO. okay, that is given 0.2 microampere. okay, and for same transistor common emitter configuration में दे रखा है 18 microampere. okay, so he asking calculate alpha DC, that is alpha, what we're doing that is DC only. alpha beta DC calculate करो, कितना आएगा.
क्या फॉर्मूला होगा अल्फा अल्फा डीसी बीटा डीसी का? ICU equals to ICBU upon 1 minus alpha. So we know my ICEO is equal to ICBO 1 minus alpha. Okay. So you can find alpha from here. Okay. So 1 minus alpha ICBO. Okay. ICEO. Okay. So alpha is equal to 1 minus ICBO ICEO. Okay. This is alpha. So once you know alpha, okay, you can find beta. Okay. So alpha beta कैसे निकलेगा? Beta equal to alpha upon 1 minus alpha. ठीक है, कितना आ रहा बताओ? The alpha है 0.988. 0.988. ठीक है, सही है। और आलोक बीटा कितना आ रहा है? 82.40. बीटा नहीं, मेरा बीटा लिखा हुआ है 89 लिखा हुआ है। 89 भी 1 माइनस अल्फा क्या होता है? बीटा प्लस 1। ओके, इससे कर लो सर 89। 89 हाँ ठीक है, आ रहा है 89? यस सर। Yes sir. ठीक है, अच्छा सबको आ रहा है ये आंसर? आगे चले। यस सर। सर मेरा अल्फा 0.889 आ रहा है। कौन सा वाला? अल्फा ये 0.98 नहीं आ रहा है? भी अल्फा क्या होगा? 1 माइनस ICBO 0.2 माइक्रो एम्पियर, 18 माइक्रो एम्पियर। ओके, ये नीचे आ जाएगा। सो 1 माइनस 1/90। ओके, सो क्या हो गया? 89 अपॉन 90, तो लग ही रहा 9.9 पॉइंट ये आना चाहिए। 89.90 कितना आएगा? इतने आना चाहिए। ठीक है, हेलो क्या मुझसे की क्या? यस सर। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IC एंड IE। ओके, आपको IC एंड IE कैलकुलेट करना है। ओके, योर अल्फा DC इज गिवन, ओके 0.99, okay, and ICBO is given 5 microampere, okay, and IB also given 20 microampere, okay। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अभी IC निकालने के लिए? फिर IC और IB में रिलेशन क्या है? फिर IC is equal to बीटा IB और अल्फा 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा दे रखा है आपको, अल्फा दे रखा है, ICOB भी दे रखा है, IB भी दे रखा है। सो यू कैन कैलकुलेट IC। ओके, once you know IC, you can calculate IC plus IB, that will give you IE। ठीक है, IC कितना आ रहा बताओ? सर 2.48 मिलीएम्पियर। 2.48 milliampere. 2.48 milliampere, yes, 2.48 milliampere। और IE कितना आ रहा है? 2.5 milliampere। सर IB इक्वल्स टू IC प्लस IE होता है ना? IE इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है,
2.48 वो कितना है 20, तो 2.48 20 कितना हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर है ना, चेक करो कितना सर आ रहा है। सही है सर, 2.5 मिली एम्पीयर ही होगा। ठीक है चलो, एड ऑन होगा ना सर, वो 0.02 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है चलो। ओके, एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला रिवाइज हो जाए तुम्हारा। बीटा दे रखा है फॉर ट्रांजिस्टर, बीटा दे रखा है 150, ओके। ये आस्किंग find the collector current IC and find the IB, okay, and you have given IE given 10 milliampere. कैसे निकालोगे इसको? IC by IE equals to अल्फा होता है सर, तो बीटा की हेल्प से अल्फा निकाल सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आपको अल्फा चाहिए तो अल्फा इज IE बाय IC, ओके। तो और आपको बीटा दे ही रखा है, ओके, बीटा बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ओके। तो आपको बीटा दे रखा है तो अल्फा निकाल लो, अल्फा निकाल लो, बीटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1। और अल्फा निकलते ही फिर आईसी निकल जाएगा, आपका आई निकला आईसी निकल जाएगा, ठीक है। और वंस यू नो दिस आईसी यू हैव बीटा, यू कैन कैलकुलेट आईबी। बताओ कितना आ रहा है, अल्फा कितना आ रहा है चैट में, कोई कुछ बोल रहा है क्या? 0.99 यस, Here IC and IB 66 microampere. ओके। 10.06। सो जी आ रहा 0.993, ओके। और मेरे पास आंसर है आईसी दे रखा है मेरा, आईसी दे रखा है 9.93 मिली एम्पियर, ओके। एंड फर्दर IB is 0.07, IB is 0.07 मिली एम्पियर। ये है ना आपका आंसर, ये आ रहा है? सर मेरा IB 66 माइक्रोएम्पियर, ये 70 माइक्रोएम्पियर, ठीक है सर। IC ठीक है, ठीक 9.9। ठीक ठीक, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेम्परेचर वेरिएशन का। सो यू नो आवर रिवर्स सैचुरेशन करंट, ओके, रिवर्स सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन है, उसमें ये पूछ रहा है ए जर्मेनियम ट्रांजिस्टर इज यूज्ड, ओके, in complementary symmetry application, or ICBO is given, ICBO is given 10 microampere, okay, at 27 degrees centigrade, okay, and beta value is given as 50, okay. So you are asking find IC, find IC, okay, when IB is 0.2 milliampere, okay, number one है, and second says this question is asking one, and second is asking if beta is independent of temperature, okay, if beta is independent of temperature, okay, find the new value of IC, okay, if transistor temperature rises to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो मतलब जो टेम्परेचर है वो 27, पहले 27 था टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था T is given 27, ओके। तो 27 पे IC कितना हो रहा है पहले वो निकालना है, ठीक है, बीटा दे रखा है, एंड देन टेम्परेचर को 27 से 50 कर दिया, तब आपका IC कितना होगा वो निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है,
क्या फॉर्मूला है? Sir, IC equals to beta times IB plus ICBO upon 1 minus बीटा second. IB, ओके, प्लस बीटा प्लस 1 ICBO. ICBO। Yes, sir. तो सब दे रखा है आपको, बीटा दे रखा है आपको, ठीक है, IB दे रखा है, ICBO दे रखा है। तो यू कैन फाइंड IC, आपको दे रखा है, IB दे रखा है, ये 0.25 फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में आपका IC आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या करोगे? सेकंड केस में आपका ICO कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है? ये ICO डिपेंड 10 डिग्री सेल्सियस पे दुगना हो जाता है। वेरी गुड, ओके। तो ये ICBO कितना हो जाएगा? नेक्स्ट सेकंड रिवर्स बाद में चेंज ICBO, दैट विल बी ICBO, ओके, 2 पावर, ओके, 57 minus 27 डिवाइड बाय 10। सो ये आपका बढ़ जाएगा। सेकंड केस में ये फैक्टर तो जो है सेम ही रहेगा, आपका ICBO चेंज हो जाएगा, तो आपका IC चेंज हो जाएगा। अब निकाल के बताओ फर्स्ट केस में IC कितना आ रहा है? सर ये 2 to the power 57 minus 27 by 10, ये एक्सप्रेशन है क्या, मतलब फॉर्मूला है क्या कोई? बताया था पहले, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स ICO, ओके, टेम्परेचर इफेक्ट ICO, IO लिखा था पहले आपने, रिवर्स सैचुरेशन IO और IS, ओके, दैट इज 2 पावर T2 minus T1 डिवाइड बाय 10। हर 10 पे क्या हो जाता है? जैसे जैसे डिफरेंस 10 हुआ तो ये जो रिवर्स सैचुरेशन डबल हो जाती है। उसी फॉर्मूले को यूज करना। 13.01 मिली एम्पियर पहले केस में। सो फर्स्ट केस में मेरा IC आ रहा है 13.01 मिली एम्पियर, सही है, 13.01, ये याद है। हाँ। और सेकंड केस में आ रहा है 15.01 मिली एम्पियर, क्योंकि सेकंड केस में मेरा जो ICBO है वो बढ़ के हो गया है 49.2 माइक्रो एम्पियर। पावर है ना? हाँ, पावर में है। पावर में कितना हो गया? 57, 30 डिवाइड बाय 10, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। पहले जो आ रहा है उससे 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये 10 आ रहा था, अब 80 जाएगा। सर एक बार ये फॉर्मूला फिर याद कीजिएगा। 16.58 आ रहा है सर। भी ये फॉर्मूले में क्या है, आपका टेम्परेचर पहले था यस सर। 27, बाद में हो गया 50, तो 50 माइनस 27 कितना हो गया? 30 सर। यस सर, 8 टाइम्स। यस सर। तो कितना है? 2 पावर 3 आ गया, तो कितना गया? नया करंट क्या आ जाएगा? पहले का 8 टाइम्स आ जाएगा। तो पहले 10 था, अभी 80 आ जाएगा। यस सर, 80 हो गया। हम्म, तो सर वैल्यू तो सर 16.58 आ रही है सर। कितना आ रही है? 16.58 सर, 16.58। वो चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो आपकी IC आपको पता ही है, आपकी क्या हो गया? आपका नया IC तो IB पता ही है आपको, वो तो कैलकुलेशन जो भी आ रहा था उनको देख लेना, कोई मैथमेटिक्स से कुछ उसमें कुछ ज्यादा है, फिजिक्स थोड़ी है उसमें, ठीक है। तो IC क्या आ जाएगा आपका? 50, ओके, 0.25 मिली एम्पियर, बीटा IB प्लस 51 ICBO 80 माइक्रो एम्पियर। अब इसको सॉल्व कर लो जितना आ रहा है। बाकी लोगों को क्या आ रहा है आंसर? IC कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इसमें? 50 इंटू 50 16.58 मिली एम्पियर। 16.58 आ रहा है। चलो ठीक है, सबका ये आ रहा तो ठीक ही होगा। 16.58 मिली एम्पियर। हाँ, ओके, ठीक है यस सर। Yes, sir. ठीक, ओके। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास टुडे हियर, ओके, टुमारो विल कंटिन्यू। एनी क्वेश्चन? जो क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जो आ रहा है, जो आज क्वेश्चन पूछे मेरे से, वो मुझे रिमाइंड कराना, ओके, संडे को डिस्कस करेंगे उसको, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you, sir.